Hello, good morning to all of you. Okay, today we are in GCI campus, and in this campus, the student of plus one mathematics, the student of plus one bio, and the student of plus one agriculture. And today we will discuss to the student in various topics. And today we will also know the student opinion about the subject teacher, about their particular subject. Okay, let's start. Hello, Simi, stand up. Yes. My name is Simi. I read in class 11 mathematics. Okay. I feel this school is good. There was many teachers Yes. just like Rakesh ji sir, physics teachers Manaram ji, and every teacher teaches very well. I like chemistry. Ajay ji sir work hard and teach us chemistry. Okay. One minute. Tell me, what is your opinion about the school environment and the school atmosphere? Their atmosphere is good. Okay. How can you say atmosphere is good? There was many facilities available, just like table Okay. and good rooms. Is there any kind of the foundation on the student? Is there any kind of the foundation on the student at that time they are sitting in the classroom, or at that time they are reading in the classroom? Foundation is good. Foundation is also good. How can you say foundation is good, but some students say that foundation is not good, but you say foundation is good? I can say because I make there many friends, just like Deepika, Priyanka, and many friends. So I think there was atmosphere is good. Thank you. Okay, take your seat. Nice, very good. Okay, anyone else? Anyone else? Yes, Lucky. Yes, Lucky. Good morning. Yes, very good morning. My name is Lucky. I did plus one maths in GCI, which is situated in Pallu. I said that I got a very good environment to study, Okay, and I like GCI school campus because sir the because sir the teaches us in a very good manner. okay. I like maths because That means I can say math is your favorite subject. yes, sir, Okay, how can you, what is your opinion about math? math sir sir we have to solve the maths and not to read it, and we have to know every formulas of maths, so we Okay, that are means able to are you solve the well maths. satisfied to the environment of the GCI? Yes sir. Okay, anything else that you want to give a message, that you want to give a suggestion about the school? Sir, I want to give a message that school campus is good and the study of campus is very good. Okay, Thank you, good. sir. Well done. Take your seat. Very nice. Simi also told, and Mr. Lucky also told about the environment, about the teaching style of the student, and at present time we are freely talking to the student, that those students though that they want to express their communication, they want to express their opinion and suggestion, they are most welcome. Okay. Yes, Manit. It is a good academy for science. It's a quiet place, and it provides us a good education in low price, and teacher have a lot of experience. Okay, Manit, at that time when you took the admission in this institute, at that time what did you feel? I feel I feel it's I feel Yes. What is your opinion? Mathematics. What is your opinion about that school? This school is very good. Okay, anything else about good school? How can you say this school is very good? This school teacher was very punctual. This all these teachers are very punctual. Yes, sir. Okay, and what do you want to say about their teaching? This institute teaching was very smart and easy way. Easy way. It's very good. Okay, sit down. In girls.
Yes. Good morning, sir. Very good morning. My name is Mohit Siak. Your name is Mohit. Okay, Mohit. What is your opinion, Mr. Mohit, about GCI? I am a student of GCI. Okay. I read in 11th math. Yes. According to GCI Institute is better than all another institute. GCI is better institute than other all institute in Pallu. All teachers teaches us good manners. Okay, all teachers have the good manners. Okay. I like the all teachers. You like the old teachers. Okay. Very good. Very good. Where is Mr. Vinod? Vinod Swami is present or is absent today? Yes, Mr. Vinod. Do you want to say something? Yes, my name is Noda Samit. Okay. My subject math. Your subject is math. Okay. School is best. School is best. Okay. Thank you. Okay. Arvind? Hello, Mr. Okay. This is my best friend, Mr. Rakesh. And Mr. Rakesh teaches you? Physics. Okay. Sir, what do you want to say about the student? What do you want to say about the GCI campus? What is your opinion about the GCI campus? ओके Yes, start. सर मेरे विचार से जीसीआई जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बच्चों के प्रति काफ़ी समर्पित है। Okay. यहाँ पर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ टीम द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता है। Yes. इससे मैं बहुत खुश हूँ। Okay. That means you are very happy. या Okay. Thank you. Thank you very much. Hello. Anyone else? Anyone else? Anyone else? That means he wants to express his or her thoughts, opinion, consultation to the school. You have given fully permission to speak. Yes, Mr. Manoj. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. सर आई रीड इन जीसीआई। Okay. I took admission 2021 and 2022. Okay. My subject is math Okay. and sir of math was very good teacher. It's okay. Take your seat. Thank you. Yes. Let's we go now to that. I should also go to Mr. Manaram sir, and Manaram sir is at present time is also sitting in chair. First of all, tell something about your study and about the GC campus. GC campus is very good. This teacher is very political. Okay. GC environmental is very GC environment is absolutely very fine. Okay. Most welcome, sir. Most welcome. Good morning. good one. This is my friend, Mr. Manaram, sir. Yes, please, sir, come on. And Manaram, sir, teaches the student mathematics. Yes, Okay, sir. What is your opinion and what is your suggestion about the institute, especially for the GCI? For class in 11th, it come in the happily exam, so prepare every topic in the reading the stuff for the in whiteboard. Okay. And every topic is the consciously and silently prepare for. Very good, sir. Very good. Happily exam is not appearing but is it a district star say becoming the paper, so it is a safe inquiring, safe reading and safe inquiring. Your output is the best and best examination. So Thank you. Thank you very much. Thank you very much for big clapping for Mr. Manaram, sir. Please. Yes, sir. Good morning, sir. You are most welcome, and among us, Managing Director of Mr. Ajay Baliara, Managing Director of GCI. Sir, you are most welcome. Sir, half-yearly examinations are very at near to the student, and what message, what opinion that you want to utter to the students, sir? Please motivate the student. विद्यार्थियों, जैसा सर कह रहे हैं कि हाफ ईयरली नज़दीक है, मैं तो कहूँगा सर कि निश्चित रूप से हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना चाहिए। और पेपर दिए हुए बच्चों को काफ़ी अरसा हो गया, क्योंकि भाग्य से कोरोना रहा, 9th में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 10th में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, प्रमोट हुए आए। तो कोई बच्चा नहीं चाहता जो पढ़ता है कि हमारे एग्ज़ाम दें, सबकी इच्छा रहती है कि एग्ज़ाम हो। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी जो महामारी जिसे घोषित कर दिया है,
WHO ने वो हमारे यहाँ प्रवेश न करें और एग्ज़ाम विधिवत रूप से सिस्टमेटिक ढंग से हो। पहली तो भगवान से प्रार्थना ये है, जब एग्ज़ाम होते हैं तो विद्यार्थी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। विद्यार्थी में एक प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो जो अर्जित करता है उसको पेपर के माध्यम से आंसर बुक में उसको पेश करता है, लिखता है। इसके लिए वो पूरे जैसे पिछले कुछ दिनों से जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसका पूरा फीडबैक आपको कॉपी में लिखना होगा। तो आपका प्रदर्शन से तय होता है कि आपकी आगे की लाइफ किस दिशा में जा रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप +1 में हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हाफ ईयरली हैं और हम 11वीं के बच्चे हैं, नॉर्मल चीज़ है, हमें इसको हल्के में ले जाना चाहिए या हमें इस पर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि साइंस के विद्यार्थी होने के नाते आपके हर दिन परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप ये न माने कि हम केवल अर्धवार्षिक परीक्षा देकर आगे की वार्षिक और फिर आगे की कक्षा में चले जाएँ। उससे पहले आप ये सोचें कि हमें टॉपिक या कॉन्सेप्ट तैयार करना है, क्योंकि साइंस के अंदर आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। कक्षा पास करना ही बड़ी बात नहीं है, आपके टॉपिक और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपका जो सिलेबस हुआ है उस सिलेबस में से कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करने में छोड़े न, उस पर लगातार मेहनत करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है आप अध्यापकों से पूछें। हमने मन बना लिया है कि साइंस मतलब GCI। साइंस में कोई भी चीज़ आपके कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उसमें हम हल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, इसके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है कि आपको जो आपका सिलेबस है उसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक आपका कमजोर नहीं रहे। कुछ बच्चे देरी से नहीं होंगे, उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्टल में टीचर अवेलेबल हैं। सारे अध्यापक, विषय अध्यापक हॉस्टल में रहते हैं। जो भी सब्जेक्ट की जो भी आपकी कमी है, जो भी आपका वीक है, कुछ टीचर जो अप डाउन करते हैं लेकिन वो हमारे अपने सिस्टम में हैं कि जब चाहें जब यहाँ रुक जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो जिसका टॉपिक क्लियर नहीं है, जो देरी से स्कूल में एडमिशन लिया, उनके लिए छात्रावास में अध्यापक उपलब्ध हैं। वो हमें पहले बता दें कि सर मुझे फिजिक्स वाले सर से पूछना है, मैथ वाले से पूछना है, केमिस्ट्री हम कुछ पढ़ाते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। जब जी चाहे तब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में मानाराम जी आपको यहाँ अभी अप डाउन कर रहे हैं लेकिन ये रुक जाते हैं यहाँ। तो बायो में जोशी जी अप डाउन जरूर करते हैं लेकिन वो हॉस्टल में रुक जाएंगे। आप कहेंगे तो कहने का मतलब है कि हम ये बहाना नहीं सुनना चाहते। जैसे राकेश सर भी आपको इंग्लिश में कोई वीक है तो ये हमारे यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ऐसी है जो समर्पित भाव से काम कर रही है। सारे लोग ये चाहते हैं, सारे लोगों में ये कंपटीशन की भावना है। जैसे आप में एक बच्चे से टॉप करने के वैसे हमारे सब्जेक्ट में टॉप करवाने की एब्सोल्युटली हमारे मन में, मैं बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं होता। मैं एज ए इस सिस्टम को संभाल रखा है, मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में रहता है कि केमिस्ट्री टॉप कर जाए, मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो जाए। वैसा ही मैथ का रहता है, हमारी डिबेट हो जाती है, कहते हैं मैथ में इतने 100 में से 100 आएंगे, मैं कहता हूँ नहीं केमिस्ट्री टॉप करेगी। एक भावनाओं को लेकर बढ़ रहे हैं। तो सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए हर टाइम तैयार हैं, हर टाइम उपलब्ध हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं तो इनको होता है कि हम लगाएंगे सर आज क्लास हमें दो, ऐसा देखने को मिला और बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये भावना हमारे अध्यापकों की है, तो क्यों न आप उनसे फ़ायदा उठाएं। यानी कि यहाँ जो टीम है वो बराबर आपके लिए समर्पित है, इसलिए आप हमेशा उनसे पढ़ने के लिए तैयार रहें, अपने दिमाग के दरवाजे जो है वो खुले रखें और अनुशासित रहकर उससे प्राप्त करें। मैंने एक किस्सा आपको बताया होगा, विद्यार्थी और गुरु और शिष्य के बीच संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपने 2 गिलास लिए, एक में दूध भरा हुआ था और एक गिलास खाली था। और दूध वाले गिलास से इस खाली गिलास में आप दूध ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपके मेथड क्या होते हैं? आपने ये गिलास लिया, इसके पास लाए, इस गिलास को उल्टा कर लिया, क्या दूध आ जाएगा? संभव है क्या? आपने इस गिलास को रखा और दोनों गिलासों को दूर दूर लेके डेल दिया, क्या दूध आ जाएगा? संभव नहीं है ना। आपने गिलास लिया और इस गिलास के पास इस गिलास को ले आए,
खड़े रहे, देखते रहे कि दूध आ जाए, कोई गतिविधि नहीं करी, क्या दूध भर जाएगा क्या? लेकिन अंततः आप क्या करें, गिलास को पास ले आए, किनारे से किनारा मिला लें और धीरे से उड़ेल दें, क्या दूध आ गया? यही संबंध गुरु और शिष्य के दरमियान होता है। जब अध्यापक बता रहा है वो दूध रूपी गिलास ज्ञान से भरा हुआ है, उसको आपके दिमाग खाली गिलास में भरना है। इसके लिए तरीके अपने अपने होंगे। उन्होंने बोलना शुरू किया, आपने सुनना बंद कर दिया, दैट मीन्स गिलास उल्टा है, क्या ज्ञान आ जाएगा? संभव नहीं है। इसी प्रकार अध्यापक बोल रहा है, आप अपनी धुन में बोल रहे हैं, गिलास दूर दूर जा रहे हैं, क्या ज्ञान आ जाएगा? अब आपके पास अध्यापक खड़ा है, आप खड़े हैं, ना अध्यापक कुछ कर रहा है ना आप कुछ कर रहे हैं, ज्ञान आ जाएगा क्या? किनारे से किनारे मिले जरूर है लेकिन गतिविधि नहीं हो रही। तो अंततः ज्ञान कब आया? जब अध्यापक बोल रहा था, बच्चा सुन रहा था, किनारे से किनारे मिले थे, भावनाओं को समझा जा रहा था, प्रत्येक बात को बारीकी से सुना जा रहा था, क्या ज्ञान आ गया? वास्तविकता यही है बच्चों, जब तक शिक्षक से आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को रेडी नहीं रखेंगे तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमने महसूस किया है, देखा है इस चीज को। बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है किसी बाह्य वातावरण से परेशान हो, हम समझा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आता, हमें पता चल जाता है कि ये ध्यान ही नहीं दे रहा। इसलिए हमेशा जब कक्ष में घुस जाओ तो पूरी दुनियादारी के सिस्टम को भूल जाओ। आप किसी से प्रभावित मत हो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। आपके जीवन में किसी को दूसरे को हिस्सा मत बनने दो। कक्ष में आपसे कोई पेन ले रहा है, आपको दे रहा है, आप सर पढ़ा रहे थे, आपका पेन किसी ने गिरा दिया, आप आपस में पेन लेने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा के निकल लिया, फिर पता चला समझ में नहीं आया। इसलिए अप टू डेट रहें, एकाग्रता बनाए रखें, अपने भौतिक संसाधन जो भी पठन की सामग्री है, विषय वस्तु जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने पास पूरी रखें। आप अच्छे घरों से आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शेयर करते हैं किताबें। ऐसा कोई है कि हमारे ज़माने में तो पासबुक के साहब खरीदते नहीं थे, एक पासबुक से 2 पढ़ते थे। आज के ज़माने में वो हालात नहीं है। इतने घर वाले सक्षम हैं कि आपको अलग पासबुक दिला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप किसी से न तो किताब शेयर करें, हाँ इमरजेंसी हो गई, किसी से बाइक भूल के आप उसका आप सहयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली एक ही किताब से पढ़ रहे हैं, साहब मुझे इसके पास इसलिए बैठना जरूरी है, मेरे पास किताब नहीं है, या इसका पेन लेना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप आपस में शेयर करना जब बंद करेंगे तो आप केवल ध्यान पढ़ाई पे लगा पाएंगे, बाकी सब ठीक है। राकेश सर ने जैसा कहा कि मंडे को आपका इंग्लिश स्पोकन का डिबेट होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और स्पोकन के लिए मैं पहले बता चुका कि आपको मीनिंग्स कवर करने हैं और प्रत्येक परिस्थितियों के मीनिंग कवर करने हैं, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। Thank you very much, sir, that you motivated the complete class very well. You are most welcome and thank you very much, sir. And I hope to you all the viewers that in further time we will also provide you a best video to the GCI, and at present time you are looking the complete atmosphere, the complete surrounding area of GCI. This is the completely, I can say, the rural area. There is not any kind of the hush and rush. This is the completely peaceful area, and such kind of the peaceful area is provided to the student. Definitely, no doubt, this is the good education, and our education is completely based on the student teacher method. Okay, thank you very much.